Good morning, friends. Good morning, Again, sir. I welcome you on the 21 Marathon Materia Medica series. This is the fourth lecture, I think fifth lecture on the Ophidia group, and hope you enjoy the series and learning and sharing and discussions of our Materia Medica. On behalf of Satyam Homeopathy Academy, myself, Dr. Amit Goel, I welcome today's speaker, Dr. Anjali Soni, on stage. Please. I request Dr. Riyanshi to give her a floral welcome to today's speaker, Dr. Anjali Soni. We will wish him best luck to present their understanding, their process of learning, and she had a beautiful case in her house, so she is presenting that case with us of Ophidia. So without wasting much time, I give her the stage. Please, stage is yours and you can go it. Good morning, everyone. Good morning. Today we'll learn something about Ophidia, the snakes. First of all, I'd like to give great tribute to our Dr. Samuel Hahnemann, who gave a wonderful gift to medical science, our homeopathy. Tribute to Dr. Praful Vijayakar sir, who gave this predictive method of practicing homeopathy, who has established a wonderful connection between a modern science, genetic science and homeopathy, from which we can treat incurable cases. My great gratitude to Dr. Amit Goel sir. Because of him, we all are here. We are getting this platform. And he is a person who don't only evolves as a homeopath, but also as a human being. Now the medicines which we will study today is Lachesis, Crotalus horridus, Crotalus cascavella, Vipera, Sancris, Naja and Elaps. Now the first of all, Ophidius. From today we will consult only according to homeopathic point of view. There are two main groups, vipers and elapids. First, vipers. They have long, movable and front fangs. Whenever they are in use, they will erected whenever they want to. Snakes bite the opposite person. And whenever they don't want to use it, they shells back to the floor of their mouth. And this group includes the Lachesis, Crotalus horridus, Crotalus cascavella, Sancris, Bothrops and vipers. And elapids have a short, non-movable front fangs, and this group includes the Naja and Elaps. Now the effect of these snake venoms mainly have 5. First, neurotoxic. Neurotoxic effect, it affects the nervous system, central nervous system as well as the peripheral nervous system. So neurons get affected and the symptoms will develop like the ptosis, frothing of the eyelid, frothing from saliva from the mouth, and all these main organism centers are getting blocked by this, respiratory blockage, etc. And neurotoxic effects have Elaps and Naja. Vascular toxic, it affects mainly the vascular system, the circulatory system. The circulatory system includes the blood vessel and lymphatic vessels. So the symptoms produced by this at the site of the bite, they develop the sepsis and all. And the medicines are the Lachesis and vipers. Cardiotoxic, its main poisons effects on the cardiological system. So heart is affected. So cardiac system gets down, cardiac arrest can occur, cardiac murmurs and all the pathologies are developed here. Hemotoxic, it mainly affects on the blood cells, and it causes the alteration into the fibrin. So that coagulation alteration occur. Either goes into the fibrin excess or fibrin less, which we will discuss in later slides.
and hemotoxic effect produces in lachesis, vipera and Crotalus horridus. Gland neurotoxic, which affects mainly glands, and Crotalus cascavella, naja and the vipera. We will discuss all this in later slides. Now the entry points of the ophidia. अगर हमारे क्लिनिक में आता है पेशेंट, हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओफिडिया ही है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोक्वासिटी, हम सबको पता है कि ओफिडिया बहुत लोक्वेशियस है. कहाँ से स्टार्ट, अगर आपके पास आया है किसने रेफरेंस लिया, आप ऐसा पूछोगे ना, पहले से स्टार्ट करेगा. मैं ये पर्सन को यहाँ पे मिला, उसने मुझे ये बताया, उसको ये पैथोलॉजी हुई थी, वो आपके यहाँ पे कितने टाइम से सब बताएगा. फिर आएगा कि हाँ मुझे ये तकलीफ है इसीलिए मैं आपके पास हूँ. ये इसका साइकोटिक स्टेज होगा. अगर सिफिलिटिक स्टेज में होगा ना, वी हैव ऑल लर्न दिस इन बुक्स, जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. इसका इतना सिफिलिस आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है. दिस मच एक्सपांसिव. Now watchfulness, very sharp. Watchfulness is ophidia is marked symptom in that. I would like to share one case of sir. Sir has one patient and the little girl come with his nanny. उसने आया हमारे यहाँ पे जो हैनमन सर का फोटो होता है वो देखा और वो सर को पूछती, अंकल ये दादू के कान कहाँ पे है? Can you see the sharpness or watchfulness of the ophidia patient? Now the secondary extrovert. Ophidia patient never just primary extrovert. They are, you all know that they are very much threatful, dangerous. They feel danger. They will start communication only after when they feel secured. They feel that I am not going to harm you. प्रफुल्ल सर ने एक वीडियो में बताया है कि उनके यहाँ पे एक पेशेंट आता है और सारी जगह पे देखता है क्लिनिक में कहाँ है क्या है, फिर बोलता है कि सर आप ये कैमरा ऑफ कर सकते हैं, फिर मैं अपना केस बताऊं. दैट्स द सेकेंडरी एक्सट्रोवर्टनेस ऑफ द ओफिडिया. फिर सर प्रिस्क्राइब लास्ट ओफिडिया टू दैट पेशेंट. नाउ sharp, witty, intelligent, quick and precocity. Very sharp, very intellectual people. Their senses are sharp. Intelligence are pro-mark. This competitiveness. As we all know that Ophidia is jealous person. Jealousy produces the competitiveness. अगर वो मार्केट में जाएगा ना हमेशा कंपेयर करेगा, मेरा ये है उसका ये, मेरे पास कम क्यों, मुझे ज्यादा करना है ज्यादा करना है. ये क्या प्रोड्यूस करेगा उसमें? मैनिपुलेशन. मुझे अपना ऊपर दिखाना है एनी हाउ, उसके लिए उसको अगर दूसरे का नीचा दिखाने का वो भी दिखाएगा. अपने को फिर ज्यादा लोक्वेशियस अट्रैक्टिव बनने का ट्राई करेगा, इसलिए जिस्टिंग मोकिंग ये सब आएगा उसमें. क्विक अचीवर्स, इतना शार्प है किसी भी तरह मुझे तो ये चाहिए, तो सक्सेस इनसे दूर ज्यादा देर रह ही नहीं सकती. जेलसी, we studied that. Suspicious, very doubtful, suspicious on every word, suspicious on his success. अगर आपके पास आएगा तो बोलेगा सर आपने ऐसे केसेस ठीक किए हैं, कितने किए हैं, वो अपनी आपको भी डाउट करेगा, अपने हस्बैंड को डाउट करेगा, वाइफ को डाउट करेगा, पेरेंट्स को डाउट करेगा, सबको डाउट करेगा. स्पाइड ऑन, सस्पिशियस की वजह से उसको सेकंड आएगा स्पाइड ऑन. उसको लगेगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है. फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, वो भी उसको सस्पिशन इसकी वजह से ही आएगा. इगोटिज्म, कांट टॉलरेट डोमिनेंस, वेरी इगोइस्टिक पर्सन. अगेन उसको अपना हायर दिखाना है, इसलिए में ये भी आएगा कि हार्ड टू इंफीरियरेंस ऑफ द सुपीरियर्स. सेक्सुअलिटी, वी नो दैट सेक्सुअलिटी are represented as a snake. Snakes are the symbol of the sexuality as well as the religiousness. वो कैसे डेवलप होता है वो हम लेटर ऑन लेगेसिस में देखेंगे. cheerfulness and roaming at the night. They are the night roamers. निशाचर बोलते हैं. Very active at the night. Revengeful and hatred. हमको सबको पता है कि रिवेंजफुल तो ओफिडिया में होता ही होता है. कुछ भी होगा, कैसे भी होगा, कितना सालों पुराना होगा, वो रिवेंज लेके बिना नहीं छोड़ेगी. बदला लेना है मतलब लेना ही है. ग्रज, सीक्रेट ग्रज, आज हुआ है, अगर उसको रिवेंज लेने का मौका नहीं मिलेगा सालों तक पालेगा. मुझे इससे लेना है, मुझे इससे बदला लेना है. सालों के बाद जब उसे चांस मिलेगा तब बदला लेगा. ये भी डॉक्टर ने सिग्नेचर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. स्नेक बाइट्स whenever they feel found comfortable and proper position.
उसको पता है कि सामने वाला मुझ पे अटैक नहीं करेगा, एट दैट टाइम स्नेक बाइट्स। ट्रांस इज अ स्टेट ऑफ द कोमा, सब्लाइम स्टेट, एक्सटेसी स्टेज। मुझे इधर से किसी भी आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन ही नहीं रखना, मैं अपनी दुनिया में जा रहा हूँ, दैट इज बियॉन्ड द रिलीजियसनेस। सेंसेस सेंस द थ्रेट एंड डेंजर, सारा सेंस ऑफ थ्रेट एंड डेंजर उसको पता चल ही जाता है। ओफिडिया कैन सेंस द वाइब्स ऑफ द अपोजिट पर्सन। प्रोफाइसिंग, क्लैरवॉयंस एंड इंट्यूजिटिव। क्लैरवॉयंस तो ओफिडिया में बहुत ही मार्क होता है। अगर कुछ भी होता है तो ओफिडिया को पता होता है कि हाँ ऐसा होने वाला है। इधर क्लैरवॉयंस ड्रीम में आएगा, डेल्यूजन में आएगा, कहीं भी आएगा, लेकिन ओफिडिया में आएगा जरूर। कंफर्मेशन के लिए आप ओफिडिया पेशेंट को पूछ ही सकते हो कि आपको कभी पता चल जाता है कि पहले ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ। नाउ प्रोफाइसिंग इज ऑल्सो दैट, जो पहले होने वाला है उसको पता चल जाता है। इमेजिनेशन, डेल्यूजन, डेलीरियम, insanity of the persecution, ghost, spirit, snake and phantom. Psychosis, imagination, delusion, जो है ही नहीं उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है। डेलीरियम, वो बोलने की स्टार्ट हो जाता है। मेनिया का स्टेज में जाना स्टार्ट हो जाता है, लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो कौन से ओफिडिया में कितना मार्क है वो हम लेटर साइड देखेंगे। घोस्ट दिखता है, फिर स्पिरिट्स दिखती है, स्नेक्स उसको दिखता है। Dreams and fear of different kind of the snake, very marked in Ophidia, also present in other remedies, but Ophidia में तो fear of snake होता है, dreams होता है, अलग अलग तरीके से होता है। किसी को ऐसे ब्लैक स्नेक्स दिखते हैं, किसी को पानी में तैरते हुए स्नेक्स दिखते हैं। Now motion and tongue, motion of the tongue lapping to and fro, ऐसे ऐसे होता ही है। या फिर वाइब्रेटिंग टंग होता है, कॉन्स्टेंटली अपने लिप को मॉइस्ट करता रहता है, ऐसे ऐसे करके। Now attractive clothes and appearance, Ophidia wants to be very much attractive. They have fear of being forsaken. So वो अपनी forsaken को हाइड करने के लिए अट्रैक्टिव बनने की ट्राई करेगा, either in verbal or the appearance. The woman very neon color clothes, attractive clothes, ज्वेलरी पहनेगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सब रिंग्स, ये सब वो पहनेगा। मेल होगा तो भी ब्रेसलेट्स हो गए, रिंग्स हो गए, सब होगा। पर ये सब वो रात को सहन नहीं कर सकता, उसको ये सब उसकी बॉडी को सहन नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे अट्रैक्टिव दिखना है इसलिए मैं तो पहनूंगा। रात को वो सब निकाल देगा। आई वॉन्ट टू बी टोटली फ्री एट नाइट। नाउ डिसीव्स द डेथ, मौत को भी चकमा देता है ये। हमें लगता है तो ये तो गया, पर वापस उठता है। आईसीयू में से भी पेशेंट वापस आते हैं। Sense the opposite person. In the first meeting, they can sense the opposite vibes or aura, as I said. Now, Vastu consultant. They strongly believes in Vastus, astrology, all. Now, selfish and self-centered. They are very selfish, thinks about themselves only. Hard on inferiors and soft to superiors. We have discussed it earlier. Aggravation in the spring. Snakes जो है ना वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं स्प्रिंग में, ताकि अगर जो इतना विंटर, इतना कोल्ड वेदर वो लोग अकोमोडेट नहीं कर पाते। इसलिए सारे के जो ओफिडिया के पेशेंट होते हैं ना, उनकी भी सारी कंप्लेंट्स विंटर स्प्रिंग्स में ही ज्यादा बढ़ती है। नाउ हेमरेजिक टेंडेंसी, वी हैव सीन दिस इज हेमोटॉक्सिक, सो फाइब्रिन अल्ट्रेशन होगा तो हेमरेजिक टेंडेंसी आएगी। नाइट एग्रावेशन एंड स्लीप इन एग्रावेशन, वी हैव सिम्टम स्लीप इनटू एग्रावेशन एंड एग्रावेशन इनटू स्लीप। अगर कोई सिम्टम आ रहा है, उसको एग्रावेट हो रहा है, मुझे सोना है, लेकिन सोने के बाद भी वो एग्रावेट ही होगा। टाइट क्लोथिंग इनटॉलरेंस, स्पेशली अराउंड द नेक. Neck is highly sensitive area for that. They can't bear even the touch of the person or anything around the neck. Nausea by the tight clothing. Annual periodicity. Snakes में annual period, हर complaint annually written आती है. Now it is just a brief description about the which snakes and loquacity and sides. Sidewise, Sancris is a both-sided person. It can be right-sided and the left-sided. Crotalus cascavella is right-sided. Horridus is also right-sided. Lachesis is left-sided and whereas both-sided. Loquacity in Sancris is also present. Cascavella में 2 marks है. Horridus में भी present है. Lachesis is also highly loquacious person. Suspiciousness, Sancris is highly suspicious. उसमें बहुत कुछ हम देखेंगे बाद में. Horridus
में भी 2 मार्क्स है, लाइकेसिस में सस्पिशियसनेस 3 मार्क्स, जेलेसी सैंक्रिस में 2 मार्क्स, कास्कावेला में 1 मार्क, हॉरिडस में भी होती है, लाइकेसिस 3 मार्क्स, फार्पेरा 1 मार्क। क्लोथिंग इंटॉलरेंस सब में है, कास्कावेला और लाइकेसिस में 3 मार्क है, बाकी में 1 और 2 मार्क में। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, स्नेक पे से हमें क्या क्या को रिलेट होता है, कि कौन से सिम्टम। नाउ फर्स्ट, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हीट। सो हमने देखा कि एज वे आर सेंसिटिव टू कोल्ड, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, हीट से भी वो उतने ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए लाइकेसिस होगा या वो होगा, उनके सारे कंप्लेंट्स, हॉट पेशेंट हो गए, वार्म से एग्रावेट होगा, सन में भी उसको एग्रावेशन आएगा, हॉट ड्रिंक्स भी वो लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। नाउ दी स्नेक्स आर दी ferocious and poisonous when hungry. So जब स्नेक को खाना नहीं मिलता, वी नो दैट कि उसको खाना ढूंढने के लिए बहुत दिन घूमना पड़ता है, आफ्टर दैट उसको अपना शिकार मिलता है, तो तब उसका पॉइजन ज्यादा कलेक्ट होता है, वो ज्यादा पॉइजनस बन जाता है। वैसे ही पेशेंट में भी जो फास्टिंग एग्रावेट्स एंड इमेजिनेटेड बाय द ईटिंग। नाउ स्नेक्स कॉल्स द राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट। सो सारे सिम्टम है वो भी लेफ्ट टू राइट ही जाते, वी ऑल नो दैट, एक्सेप्ट द क्रॉटलस एंड इलाप्स, वहां पे राइट टू लेफ्ट जाते हैं। नाउ स्नेक्स आर सेंसिटिव टू टच एंड वाइब्रेशन। स्नेक सेंसेस द ऑल द डेंजर थ्रू हिज टंग, दैट्स व्हाई इतनी टू एंड फ्रो बार बार मूवमेंट होती है उसकी, और उसकी बॉडी भी उतनी सेंसिटिव होती है। तो ओफिडिया के पेशेंट भी टच से बहुत एग्रावेट होते हैं, स्लाइटेस्ट नॉइस होगा तो भी वो बहुत एग्रावेट होंगे। नाउ स्नेक कैन swallow solid easily due to pressure created on the throat. So patient में भी यही सिम्टम आते हैं, they can swallow solid easily. कोई भी थ्रोट का इन्फेक्शन हुआ, कुछ भी और टॉन्सिलाइटिस लेके आया, कोई भी फेरिंजाइटिस लेके आया, कोई भी डिजीज लेके आया, पर उसको लिक्विड निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। Indian cobra passively calls in a stance, whereas the bushmaster, that is lachesis, snakes attacks immediately. मतलब lachesis होगा ना, वो जो भी होगा डायरेक्टली बोल देगा, और जो नाजा है, इंडियन कोबरा है, वो ऐसे पहले चांस देगा सामने वाले को। रेटल स्नेक, दैट इज क्रॉटेलस, मेक्स लाउड नॉइसेस बिफोर स्ट्राइकिंग, और जो क्रॉटेलस है वो पहले वार्न करेगा कि ये मेरा डेंजर, तुम मुझे मत पैदा कर, मैं वार्न कर रहा हूँ, चला जा, अदरवाइज आई विल बाइट यू। ऐसा हमें पेशेंट में भी देखना मिलेगा। Now stool of snake is dark and offensive. So we know that discharges of the Ophidia is very dark, offensive, black, to and fro movement of the tongue. हम कभी किसी किसी पेशेंट में ट्रैवलिंग ऑफ द टंग भी देखने को मिलता है। Now the clinical pathology, throat and around the throat pathologies, deglutition pathology, उसमें क्या है, मेन उसको फियर है कि बीइंग पॉइजन, तो अगर पॉइजन उसको आ रहा है तो वो ऐसा सोचेगा कि मैं अपने गले के नीचे उतारूं ही नहीं, कि मेरे बॉडी में वो स्प्रेड हो, इसीलिए वो आएगा डेग्लूटिशन प्रॉब्लम, चूइंग प्रॉब्लम। फिर एनी पैथोलॉजी और रिपोर्ट्स अराउंड दी रीजन इज लाइक अ स्नेक और सर्पेंटाइन पैटर्न, तो सांप के जैसा आपको दिखेगा। अगर हम इसको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीन लेयर पे वो काम करेगा अराउंड द थ्रोट, स्पेशली अराउंड द थ्रोट, सारी बॉडी पे काम करता है। पर अगर हम थ्रोट का डिस्क्राइब करें, हमें एक्टोडर्म पे सोरियासिस है, ल्यूकोडर्मा है, लाइकन प्लेनस है, ये सब ऑटो इम्यूनिटी में सारे डिजीज देखने को मिलेंगे, और उसमें सर्पेंटाइन पैटर्न के आपके सोरियाटिक का पैचेस में सर्पेंटाइन पैटर्न में देखने को मिलेगा। नाउ दी कॉर्कस्क्रू पैथोलॉजी, वी हैव सीन दी, अगर कॉर्कस्क्रू इसोफेगस होता है और उसका बेरियम में स्टडी कराते हैं ना, तो ऐसे हमें देखने को मिलता है, इट्स लुक्स लाइक सर्पेंटाइन पैटर्न। और ऐसा ही कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, एस कर्वेचर स्कोलियोसिस में भी होगा, विच लुक्स लाइक स्नेक, वो बाद में आएगा। और कॉन्स्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, स्टेनोसिस एंड कंट्रैक्शन, ये सारे साइकोटिक में आ गया। इलास्टिन एक्सेस हुआ तो कॉन्स्ट्रक्शन होगा, स्ट्रक्चर होगा। ऊपर से चलो बाई चांस उसने पॉइजन नीचे ले लिया, अभी इसोफेगस से तो मुझे नीचे नहीं लेना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ताकि वो पूरा ट्राई करेगा कि मैं नीचे ना जाऊं, इसलिए ऐसे ऐसे आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो कैंसर अराउंड द नेक एंड कैंसर अफेक्शन कॉलर, कैंसर अफेक्शन कॉलर रुब्रिक है, और इसमें सिर्फ 2 ही मेडिसिन, एक लाइकेसिस और एक फर्स्ट वजह। अराउंड द नेक मतलब अगर थायराइड का कैंसर हुआ है, इसोफेगस का कैंसर हुआ है, वी कैन थिंक ऑफ barium will study serpentine pattern. Now the tube, canal and ducts pathology. It affects on the all the tube, fallopian tube, stitching tubes, canals. Intestinal canals पे भी ये बहुत काम अच्छा करता है. Ducts,
गॉल ब्लैडर डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सब पे भी ये काम करेगा। मेनोपॉज, क्लाइमेक्टिक पीरियड एंड अराउंड द मेंस्ट्रुएशन, हमको पता है सारे अगर उसको एग्रावेशन कहाँ पे होगा, सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्जेस, एंड मेनोपॉज इज अ नेचुरल सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्जेस, नेचुरल एंड ऑफ द मेंसेस। तो उसको मेनोपॉज में बहुत सारी कंप्लेन आएगी, हॉट फ्लूसिस, हम लैकेसिस को क्लाइमेटिक मेडिसिन से ही पहचानते हैं। स्कॉलियोसिस, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड। स्कॉलियोसिस मतलब स्पाइन है जो उसका एस कर्वेचर होगा, और स्काइफोसिस में उसका ऐसा हो जाएगा, तो उसको कांस्टेंट थ्रेट है कि मुझे कोई पीछे फॉलो कर रहा है, तो ऐसे ऐसे देखने स्टार्ट करता है, एंड दैट डेवलप्स पैथोलॉजी। अभी स्क्विंट, डाइवर्जन एंड सस्पिशियस। स्क्विंट में हमें पता है कि आईबॉल की मूवमेंट ऐसे देख सकते हैं, अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, राइट जाएगा, लेटरल जाएगा और इनवर्ड जाएगा, तो कांस्टेंट ऐसे 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 ऐसे, तो दैट डेवलप्स दिस स्क्विंट। अगर राइट साइडेड तो वी कैन आस्क दैट स्पाउस का क्या प्रॉब्लम है, हस्बैंड का क्या है, वाइफ का क्या है, बिजनेस रिलेटेड है क्या कुछ। अगर लेफ्ट साइडेड डेवलप हुआ तो फैमिली में कुछ हुआ है, क्या हुआ है, सो वी कैन थिंक ऑफ लाइक दैट। नाउ कॉर्ड अराउंड नेक, सेंसिटिव टू नेक। अभी बच्चा आया है, प्रेगनेंसी उसका चल रहा है, हमें पता है कि कॉर्ड अराउंड द नेक का हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। ऐसा क्यों होता है, उस बच्चे ने ये वाला परसेप्शन क्यों लिया? अगर मदर ने ऐसा सोचा है प्रेगनेंसी में, मुझे तो ये प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, फिर भी बहुत सारे कॉजेस है, पर्सनल कॉजेस है, मुझे हस्बैंड ने फोर्स किया, इसने फोर्स किया, उसने फोर्स किया, मदर ने परसेप्शन डाला, बच्चे ने ठीक है मुझे तो नहीं जीना है, तो फिर वो कॉर्ड अराउंड द नेक आएगा। स्नेक में भी ये होता है, वो अपने बच्चे को ही जन्म देने के बाद मार डालते हैं, ये सब होता है। नाउ कांस्टेंट नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगेन उसका फियर ऑफ बीइंग पॉइजन आया, तो उसको नोज़िया और वॉमिटिंग कब आता है? जब हमें डिस्कस होता है, जब हमें एंगर फीलिंग आता है, वी कांट डाइजेस्ट एनीथिंग ना, वी वांट टू ट्राई टू थ्रो आउट इट। नाउ कैंसर, मैलिग्नेंसी, प्रोजेनी, genetic mutation associated with the TORCH positive. Ophidia works very well into the viruses, Toxoplasma rubella, Cytoplasma, herpes, every viruses. भी genetic mutation तक ये अपना चेंजेस कर सकता है। मदर है टॉर्च पॉजिटिव है प्रेगनेंसी में, उसने ये टॉर्च अपने बच्चे को पास आउट किया, ये साइलेंट स्टेज में रहेगा, लेकिन अगर कोई उसको एक्सपोजर मिलता है तो एक्टिव होगा। वो हर्पीस वायरस है, वो बेस ऑफ दी गैंग्लिया में होता है, कुछ एक्टिव हुआ तो फिर हम मदर की हिस्ट्री पर से भी देख सकते हैं, और जेनेटिक म्यूटेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। नाउ एग्रावेशन फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ द डिस्चार्जेस, कोई भी डिस्चार्ज हुआ सप्रेस किया, वॉमिटिंग सप्रेस किया, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया सप्रेस किया, फिर उसको सारे सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए, एंड एमेलियोरेशन फ्रॉम द डिस्चार्जेस ऑफ एवरी काइंड, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज द पैथोलॉजिकल। Now first we will study about the Lachesis mutus, Bushmaster और Surucucus snake. Lachesis, first jesting and verbal winner. बातों का तो ये बादशाह है, किसी को जीतने ही नहीं देता। अगर ये चालू करेगा ना तो किसी का चांस ही नहीं कि वो बोले, उसको इंटरप्ट कर, किसी की ताकत नहीं है कि उसको इंटरप्ट भी कर सके। पॉजिटिव एंड लोक्वेसिस, लोक्वेसिस तो हमें पता ही है, वेरी पॉजिटिव नहीं, सारे में पॉजिटिव साइड को देखेगा। क्विक अचीवर्स, हमने जैसे आगे देखा, इतना पॉजिटिव है, इतना बोलेगा, इतने लोक्वेशियस बताएगा ना, अपने आप को इतना सुपीरियर इगोटिज्म में लेके जाएगा ना, और कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत होती है, इससे मुझे इससे ज्यादा चाहिए, इससे ज्यादा चाहिए। दे आर वेरी गुड इन एडवर्टाइजमेंट, मैनिपुलेशन तो इनका बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने वो बोलते ना, गंजे को भी कंघी बेच के आ सकता है वो। अट्रैक्टिवनेस, वो हमने देखा, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, स्टाइलिश, ये वो रिंग्स ऑर्नामेंट्स वगैरह सब। टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन आफ्टर स्लीप और ड्यूरिंग द स्लीप, सेपरेशन ऑफ डिस्चार्जेस भी हमने देखा। नाउ जेलसी एंड सेल्फ सेंटर्ड, वेरी मच जेलस। इसकी जेलसी और अल्जाइमर्स की जेलसी ना शंकरन सर ने डिफरेंशिएट दिया है। इसकी जेलसी का क्या होगा, वो भी जेलस होगा और कंपेटिटिवनेस इसमें भी होगी, और अल्जाइमर्स में भी होगी। अल्जाइमर्स क्या करेगा, वो अपना अट्रैक्टिवनेस, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगा, फुलिश प्ले करेगा, एंटिक्स प्ले करेगा, और ज्यादा वायलेंट होगा ना, वो स्ट्राइकिंग और सब स्टार्ट करेगा। लैकेसिस ये सब नहीं करेगा,
वो मोर विवेशियस हो जाएगा, ज्यादा जेस्टिंग मोकिंग ऐसा ऐसा बोलेगा ना, फ्लैटरी करेगा, सामने वाले को फ्लैटरी करेगा और अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। सस्पिशियसनेस, हमने वो देखा वो कैसे कैसे वो अपने आप को ज्यादा हाई कर सकता है। शार्प टंग, बहुत ही शार्प बोलता है। विटी, इंटेलेक्चुअल पर्सन, ब्राइट पीपल, सेंसोरियस, अगर उसको अपना अच्छा दिखाना है तो दूसरे का नीचा भी दिखा देगा। सार्कास्टिक में भी वो आपको ऐसा बता देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब बोल के चला गया, मतलब बोलता है ना, कट भी जाए और खून भी ना निकले, ऐसा सार्काज्म करेगा ये। नाउ फैसिनेटिंग एंड चार्मिस्टिक, रूथलेस, रिमोर्सलेस एंड टैक्टलेस, उसको कोई गिल्ट नहीं है कि उसने दूसरों का नीचा दिखाया, उसको कुछ वैसा पता नहीं चलेगा, उसको किसी को दया पे भी नहीं आती कि मैंने इसका साथ ऐसा क्यों किया, मुझे मेरा चाहिए और कुछ नहीं। टैक्टफुल भी बहुत होता है। स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड हॉटी पीपल, हमने देखा था कि इगोटिज्म वो टॉलरेट नहीं कर सकते। हमने एक केस देखा था बच्ची का, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस लेके आई थी, 5 या 6 साल की थी। तो उसकी मम्मी ने बोला वो वैसे तो आधे फ्रेंड्स के ऐसे लोगों के साथ नहीं खेलती कि जो उसको डोमिनेट करता हो, और सारे और भी सिम्टम्स है वो बाकी के साथ खेलेगी जो उसको अच्छे से खेलते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, पर डोमिनेशन इससे बर्दाश्त नहीं होता। We prescribe Lachesis to that patient on the basis of other symptoms too. Intense, passionate goes to extreme. कुछ भी होता है उसका एक्सट्रीम पे ही आता है। More passionate about the career, more passionate about the sexuality, religiousness, सब उसका हाई मार्क और पैशनेट इंटेंस ही होता है। Moralistic, Persian, militant on sexual और religious issues, सब वायलेंस, मोरल्स भी उसके बहुत हाई होते हैं। कभी कभी किसी पेशेंट में मोरल्स इतने अच्छे होते हैं ना, नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, इट इज मोरलिस्टिकली रॉन्ग, आई शुड नॉट। सेक्सुअल बिहेवियर, समटाइम्स दे हैव ओनली सिंगल पार्टनर and in other snakes they have multiple partners because of their very high sexuality and they can't satisfy from one partner, like Floric. Now vivid imagination, prophetic and quick comprehension, उनके लिए कुछ समझना सीखना बहुत इजी होता है बिकॉज उनके जेनेटिक म्यूटेशन में शार्पनेस होती है, इंटेलेक्ट होती है। रिलीजियस हॉलमार्क ऑन द फेस, वो टीका वगैरह सब दिखता है आपके। 6 सैल्वेशन एंड अंडर सुपर ह्यूमन कंट्रोल, उसका कैसे डेवलप होता है, पहले उसने बिजनेस में या फिर इतने जेलसी, सस्पिशियस, कॉम्पिटिटिवनेस सब किया, उसके फिर अगर पॉजिटिव हुआ तो वो और मोर एम्बिशियस हो जाता है। अगर लेकिन नेगेटिव गया तो फिर मुझे ये सब करना ही नहीं है, ये सब मेरा काम ही नहीं है, अच्छा तो मैं उससे रिलीजियस में चला जाऊँ, और उसमें भी एक्सट्रीम जाता है, मुझे सैल्वेशन चाहिए, ये चाहिए, ट्रांस स्टेट में चला जाता है। फिर बिजनेस एवर्जन 2 है, बिजनेस डिजायर 4 में भी ओफिडिया है और बिजनेस एवर्जन 2 में भी ओफिडिया है। Aggravation menopause, never well since menopause or climacteric period, purple or bluish discoloration of the skin. Now rubrics: mind loquacious, mind delirium loquacious, mind delirium frenzy loquacious, mind jealousy, mind suspicious. Mind that desire for fear with, उसको डेथ भी चाहिए लेकिन उसको फियर भी है कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा। Mind fear disease of impending, mind religious, mind anxiety sleep before and mind anxiety sleep falling asleep on, mind buoyancy, ऐसी बातें करता है, एक से ऊपर एक चला ही जाता है, बियॉन्ड स्टेज वाला। माइंड क्लैरवोयंस और ड्रीम क्लैरवोयंस से मुझे सर का एक केस याद आता है। सर के पास एक पेशेंट आया था वर्टाइगो की कंप्लेन लेके और माइग्रेन की कंप्लेन लेके। वर्टाइगो में उसको टेंडेंसी थी कि वो जब भी वर्टाइगो आता है और वो गिरती है ना तो लेफ्ट साइड ही गिरती है चक्कर खा के, और क्लैरवोयंस ये सब था। लेकिन उसका क्लैरवोयंस इतना मार्क था ना, उसके घर में सब प्रॉपर्टी का कोई केसेस चल रहा था, तो फिर वो पेपर्स उसके फादर इन लॉ ने कहीं पे रखे थे और उनकी डेथ हुए 2-3 साल हो चुके थे। फिर केस आया, ये सब हुआ, सब पॉसिबल जगह पे सब उन्होंने ढूंढ लिया, कहीं पे भी पेपर्स नहीं मिले। फिर उस लेडी को एक दिन ड्रीम आता है, फादर इन लॉ ड्रीम में आते हैं और बताते हैं कि ये पेपर्स इस जगह पे है, एंड टू द सरप्राइज वो पेपर एक्चुअली उसी जगह पे मिलते हैं। ड्रीम क्लैरवोयंस दिस मच मार्क इन ओफिडिया पेशेंट, और उसको भी लेकेसिस प्रिस्क्राइब की थी। माइंड डिसीटफुल स्लाई,
माइंड मिज़ेंट्रॉफी, माइंड हेट्रेड फीलिंग, हेट्रेड एंड रिवेंजफुल। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया उसके लिए तो मुझे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी और रिवेंज तो ये लेगा ही। माइंड कॉम्पिटिटिवनेस, माइंड डिजायर सॉलिट्यूड, ये अगर रिलीजियसनेस जगह वाला फेस उसका आ जाता है तब इसमें आ जाता है। एवर्जन टू कंपनी, टू इंडल्ज इनटू द फैंसी, ये भी रूब्रिक है इसमें। लैरिंक्स, ट्रेकिया, सफोकेटेड फीलिंग, डेलिरियम सेप्सिस फ्रॉम ब्लड थिक हेमरेजिक पैथोलॉजी। सेप्सिस हो जाएगा, ब्लड थिक हो जाएगा, वो सारा कोएगुलेशन कंपोनेंट में चेंजेस आ जाएगा, फाइब्रिन एक्सेस होगा और हेमरेजिक सारा कोएगुलोपैथीज और सब डेवलप होगा। माइंड एक्सटेसिस सब्लाइम, वो रिलीजियस में ट्रांस स्टेज में इतना चला जाएगा और वो स्टेज को बहुत इंजॉय करेगा। सर ने ऑटिस्टिज्म के भी एक इसमें ये रूब्रिक के साथ लेक्चर्स प्रिस्क्राइब की थी। ऑटिस्टिक बच्चा आया था, उसको एपिलेप्सी का हिस्ट्री था, अभी फर्स्ट एपिसोड ही था। अलॉन्ग विद अदर एक्सटेसिस में उसको ऐसा बोला कि इसको भजन कीर्तन सत्संग बहुत पसंद है। वो जब भी कुछ करता हो ना तो इतना उसमें लीन हो जाता है ना, उसके आजू बाजू का कुछ पता नहीं चलता। और जब हमने पेशेंट को हमारे सामने भजन वगैरह सुना, हमको वो देखा ही इस चीज में, इसलिए फिर हमने उसको सर ने उसको लेकेसिस प्रिस्क्राइब किया था। नाउ क्रोटेलस हॉरिडस, एंग्री चीयरफुल स्नेक्स। क्रोटेलस हॉरिडस इज बिजनेस माइंडेड स्नेक। ओफिडियम में हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, तो पहला क्रोटेलस आएगा बिजनेस स्नेक, बहुत एंग्री, बहुत स्नेपिश होगा, आपको आंसर भी बहुत रूडली देगा। पेशेंट है, चलो ना केस लो ना जल्दी जल्दी, इतना क्या पूछते हो, ऐसे आपको बोलेगा। इजीली एंगर विद स्नेपिश, सैड बिजनेस माइंडेड, ऑब्स्टिनेट कॉरोसमनेस एंड स्कोल्डिंग, हमेशा ऐसे ही बात करेगा, सीना जैसा क्या मिला जैसा पिक्चर आपको दिखेगा। एवर्जन टू फैमिली और सोशल एंड सबमिटेड टू स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो किसको, वो हायर वाला इसमें भी दिखेगा कि हाई वाले को बहुत ही सॉफ्टली बात करता है, इंफीरियर को बहुत हार्ड हो जाता है। फैमिली सोशल लाइफ इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर एज अ ड्यूटी वो सब करेगा, पर उसको अपने आप से तो करना ही नहीं है ये सब। हॉरिबल ड्रीम ऑफ द मर्डर, कैडेवर, इवन द स्मेल ऑफ द कैडेवर इज ड्रीम्ड ऑफ। ड्रीम में उसको मुर्दे वगैरह तो दिखेंगे, लेकिन उसके साथ उसकी स्मेल भी आ रही है, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है इसमें से। सडननेस, कुछ भी होता है उसमें बहुत सडनली प्रोग्रेस होता है। बिजनेस माइंडेड टो वॉकर्स, वो हिल पे नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे करके टो पे चलेगा। फिर मिज़ेंट्रॉफी, अवर्जन टू मैनकाइंड, मुझे तो ये इंसान जाति से ही नफरत हो चुकी है, ऐसा बोलता है। ऑर्गन पैरेंकाइमा, इट वर्क्स ब्यूटीफुल इन ऑल द ऑर्गन पैरेंकाइमा, किडनी, लीवर, ब्रेन, ब्लड इज डार्क फ्लूइड हेमरेज फ्रॉम द ऑल द ओरिफाइसेस, एवरी डिस्चार्ज इज ब्लड, इवन इसका स्वेट भी ब्लडी होता है, लाइक इसमें भी होता है पर इसमें ज्यादा मार्क होता है। जाइमोसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू सिफिलिस, इतना डिकम्पोजिशन इसमें प्रोसीड फास्ट होता है ना कि वो जाइमोसिस में चला जाता है। जाइमोसिस इज sufficient word to describe the crotalus horridus. Black skin of the face, blackish goes on. Right-sided loquacity, अभी हाँ इसमें लोकोसिटी में क्रोटेलस और लेकेसिस का डिफरेंस दिया है। क्रोटेलस क्या होगा, अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है ना तो वो पिक करेगा और ऐसे वो उसमें लोकेशियस बनने का ट्राई करेगा, पर इन बीच में वो मरमर आएगा, मम्बल आएगा, स्टम्बल आएगा और हमें लगेगा ऐसे इंटॉक्सिकेशन में जा रहा है। जब लोकेशियस क्या होता है, वेरी लाउड, वेरी विवेशियस, वो स्टार्ट करता है फिर बहुत ही एनर्जी के साथ खत्म करता है, एक्साइटमेंट बहुत होती है, जबकि क्रोटेलस में बहुत इंटॉक्सिकेटेड वाला फीलिंग आएगा। और ये इंटॉक्सिकेटेड स्टेट उसका मेमोरी वीक, क्लाउडेड परसेप्शन में कोई भी देखने को मिलेगा। मेमोरी वीक, स्टूपिड, कैन नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, मेक्स द रिडिकुलस मिस्टेक्स एंड इनएबिलिटी टू होल्ड हर माइंड टू वन सब्जेक्ट, वंडरिंग होता ही रहेगा उसके माइंड का। ऑन वॉकिंग स्ट्रीट वुड हैव बीन रन ओवर, वो दुकान में जाएगा फिर याद करते कि मैं क्या खरीदने आया था। डिल्यूजन सराउंडेड बाय द एनिमीज, लगता है मेरे आसपास तो सारे दुश्मन ही दुश्मन है, बहुत सारे डिल्यूजन है, वो हम रूब्रिक्स में देखेंगे। पैथोलॉजीज क्या क्या होगी, हम देखा कि जाइमोसिस है, HIV, DIC, प्लेग, कोविड-19 में हमने ओफिडिया बहुत प्रिस्क्राइब किए, एज वी नो दैट कि ये हेमरेजिक टेंडेंसी पे काम करेगा, क्लोट्स बनाएगा, फाइब्रिन लेस होगा, इसीलिए हमने क्रोटेलस भी दिया था, डी डाइमर हाई होगा, सब होगा।
हेपेटाइटिस एंड मैलिग्नेंट जॉन्डिस। जॉन्डिस उसका मैलिग्नेंट होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट होता है। जितेश सर ने केस डिस्क्राइब किया मैलिग्नेंट जॉन्डिस दैट स्प्रेड फ्रॉम द लीवर टू द ब्रेन एंड ही प्रिस्क्राइब क्रोटेलस हॉरिडेस एंड दैट वर्क वंडरफुली एंड हील्ड वंडरफुली। सोरियासिस एनुअल शेडिंग होगा, एनुअली उसका स्टार्ट होगा और उसको सोरियासिस स्केलिंग होगा, स्प्रेडिंग होगा हर टाइम उसको, एक ही टाइम पे उसको हर साल कंप्लेन आएगी। माइलोमलेशिया हमने देखा कि ब्रेन पेरेंट का है, वहाँ पे इसका अफेक्शन है। न्यूरलजिया सेप्सिस आफ्टर, ये सेप्सिस है, एक्टोडर्म है या फिर एंडोडर्म से न्यूरलजिया, डायरेक्ट न्यूरो एक्टोडर्म में जा रहा है डिजीज, इसका जाइमोसिस डायरेक्ट बढ़ रहा है। ल्यूकेमिया, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्राओक्यूलर हेमरेजेस राइट साइडेड, और अगर लेफ्ट साइडेड हुआ है तो वो लाइकेसिस में जाएगा। नाउ रुब्रिक्स, माइंड एंग्विश, स्लीपलेस नेटफीस, माइंड आंसर्स आंसरिंग डिस्कनेक्टेड, कोल्डनेस ऑफ द स्किन एंड रैपिड पल्स विथ, सिंगल रेमेडी है क्रोटेलस। माइंड आंसर्स स्नैपिसली, माइंड एंजाइटी हेमरेज विथ, माइंड एंजाइटी हेमरेज विथ इंटेस्टाइनल, उसमें तीन ही है, एकोनाइट और आर्सेनिका। फिर दूसरा सडननेस इसमें भी होगा और उसमें भी होगा, पर एकोनाइट का क्या है, ऑल ऑफ द सडन सब स्टार्ट होगा और यहाँ पे ऑफेंसिवनेस बहुत ही ज्यादा होगी, ब्लैकिश बहुत ही ज्यादा होगा हेमरेज में। माइंड डेलीरियम फीवर ड्यूरिंग येलो, माइंड डेलीरियम मेजर्स इन, माइंड डेलीरियम वियरीनेस विथ, माइंड डेल्यूजन एनिमल्स ऑफ हिडियस, ऐसे ऐसे गंदे गंदे चेहरे वाले एनिमल उसको दिखते हैं ना डेल्यूजन में। माइंड डेल्यूजन एनिमल्स ऑफ सराउंडेड बाय हिडियस, कभी तो शायद एक ही दिखता है और ऐसा लगता है कि मैं ऐसे गंदे चेहरे वाले एनिमल से पूरा घेरा हुआ हूँ, उसको ऐसा इसमें भी लगे कि मैं या फिर सराउंडेड बाय दी ऐसे हिडियस एनिमल्स होगा या फिर मॉन्स्टर्स होगा। माइंड डेल्यूजन, ब्रेन इज डिकेइंग, मेरा ब्रेन डिके हो रहा है, सब डिके 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 ही है क्रोटेलस में। माइंड डेल्यूजन, बेबीज इन द बेड। ना क्रोटेलस कास्कावेला, ब्राजीलियन रेटर स्नेक, क्रोटेलस कास्कावेला को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रिलीजियस स्नेक, हिस्टेरिकल स्नेक, स्पिरिचुअल, हेलुसिनरी एंड एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन स्नेक, उसको बोलते स्पिरिचुअल क्लैरवोयंट स्नेक भी उसको बोलते हैं। इसका ये इतना सिफिलिस में होता है ना, उसको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन भी आते हैं, क्लैरवोयंस भी आता है, हेलुसिनेशन भी होता है। क्रोटेलस कास्कावेला का पेशेंट आप देखोगे ना, ऐसे लग रहा है कि कोई हॉरर मूवी देख रहे हो या फिर किसी पागल पेशेंट को देख रहे हो। इमेजिनरी क्लैरवोयंस, फैंसिस एक्साल्टेशन, उसकी सारी फैंसिस बहुत ही एक्साल्टेड होती है। मोस्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक एंड हिस्टेरिकल स्नेक, पीपल हु सी गोस्ट, monsters, spirits near him and talk with them, hear the footsteps in the next room. इतना उसका सिफिलिस बढ़ गया है कि अगर उसको ऐसा लग रहा है, डेल्यूजन आ रहा है कि कोई बाजू के रूम में चल रहा है, मुझे कोई गोस्ट दिख रहा है, कोई स्पिरिट दिख रहा है, मैं उससे बातें कर रहा हूँ। कांट रिटेलिएट एंड फियर रिटेलिएशन ऑफ, वो रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, अगर किसी ने उसके साथ बुरा किया है तो वो नहीं कर पाएगा, वापस उसको दे नहीं पाएगा। ड्रीम्स ऑफ गुरुस, गॉड, इल्यूमिनेशन, लाइट एंड स्पाइडर्स, बहुत सारे गुरुस के ड्रीम आएंगे, ये बाबा है, वो बाबा है, जो भी उसका स्पिरिचुअल कोई भी रिलीजन है उसका ड्रीम आएगा कि ये बाबा ने मुझे कि ये बोला, गॉड आया। इल्यूमिनेशन, लाइट, हमारे सारे फोटोज में या फिर देवी देवता में हमने देखा होगा बहुत सारी येलो वाली लाइट होती है पीछे, उसको ये देखता है कि हम बहुत सारे लाइट वाले थे, कोई भगवान थे, उन्होंने आके मुझे ये बोला वो बोला। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर स्पिरिचुअल लीडर। डिल्यूजन, सी स्केलेटन एंड कॉप्सिस, उसको जाइजेंटिक ब्लैक स्केलेटन्स दिखते हैं। मैग्नेटिक स्टेट, उसको ऐसा लगता है मेरे में इतना मैग्नेटिज्म है ना कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मैग्नेटिक स्टेट ऑफ द माइंड एंड मैग्नेटिकल स्टेट में भी दिखता है उसको। अब उसको कुछ भी पूछेगा कोई जवाब नहीं देगा, उसको डिफरेंट वॉइसेस सुनने देते हैं, या तो कोई मेरे लेफ्ट साइड से बोल रहा है या फिर मेरे पीछे से बोल रहा है, और उसका ऐसा मुझे ये वॉइस को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड हाँ, वो दरवाजे के पीछे अपने आप को फेंकेगा, स्क्रैच करेगा, ये सब करेगा। दिस सिमिलर अटैक सक्सीडेड ईच अदर, ओकेजनली इंटरप्टेड बाय द लाफ्टर एंड ऑलवेज एंड विद द फ्लड ऑफ टीयर्स। ऐसे अटैक्स उसको 2 या 3 आएंगे, फिर वो इतना हंसना चालू करेगा, पर एंडेड अप विद लॉट्स ऑफ टीयर्स। सी अगेन क्राइज आउट, उसको लगेगा कि मैं लायंस की डेन में हूं, पर वो लायन मुझे कुछ करेगा नहीं।
डेजा वो एक्सपीरियंस, वो हमें लगता है ना, वो हमने फुकरे मूवी में देखा था, ऐसा मुझे पहले कभी हुआ है, हाँ आज मैंने ऐसे ही पहले कभी किया है, ऐसा ही लेक्चर कभी दिया था, सब ऐसे ही बैठे थे, ऐसा एक्सपीरियंस उसको आएगा। यूट्रस न्यूरालजिया ऑफ, उसको यूट्रस में भी न्यूरालजिया फील होता है। हाइपर एक्यूट सेंसेस, सारे सेंसेस बहुत ही हाइपर एक्यूट होते हैं उसका। जनरल इट इज नो डिजायर फूड, इसमें सिंगल रेमेडी है। इल्यूजन स्मेल ऑफ हॉस्पिटल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल वाली स्मेल कहीं से आ रही है। ग्रीफ, इसमें नेट्रोम्यूर का ग्रीफ भी होगा, और स्टेफी की जैसे एंगर कांट रिवॉल्व, वो अपने एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सेंस ऑफ आइसोलेशन, मैं बहुत ही अकेला हूँ। जेलेसी ऑन अकाउंट ऑफ फोरसेकन फीलिंग, अभी उसको मुझे अकेला लग रहा है, फिर भी मैं जेलेसी करूंगी नहीं, मुझे ऐसा है, मुझे ऐसा है, फिर भले मुझे कोई नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जेलेसी तो मुझे होगी ही होगी। सीज डार्क जाइजेंटिक ब्लैक स्केलेटन, स्फीयर ऑफ एक्शन इज यूट्रस, साइकी, thyroid gland, circulatory system and hypochondriasis. Sense of persecution, being persecuted by the animals, has burn and heat. Sensation as if tip of the nose drawn up as by the string as if were tied around the thyroid. उसको टाइट बैंडेज वाली फीलिंग हर जगह पे है। टिप ऑफ को नोज को मेरा अपलिफ्ट हो गया, उसका डोरी मेरे थायराइड के ऊपर लगा है। फिर मेरे एब्डोमेन पे भी एक बैंड है, उसका ऐसा सेंसेशन आता है। और हेड और चेस्ट को आयरन आर्मर से पूरा ऐसे टाइट कर दिया, ऐसा लगता है उसको। आईज एज इफ ड्रॉन आउट, प्रेस्ड आउट और कट आउट, बाहर निकाला है किसी ने, प्रेस किया और कट कर दिया मेरा आईज। बर्निंग अर्टिकेरिया कमिंग इन द क्रॉप्स ओवर वन रीजन ऑफ द बॉडी। बर्निंग अर्टिकेरिया देखने को मिलता है केस, ठीक, ये मेरे ही फैमिली का एक केस है। इसमें हिस्टोरिकल रिलीजियस मैंने बचपन से देखा है। वो एनुअल पीरियडिसिटी में आता है। नवंबर दिवाली के बाद आएगा 5-6 महीने रहेगा, 4 के 5 महीने रहेगा, फिर वापस चला जाएगा। ये रिलीजियस मीडिया में क्या करता है पेशेंट, वह बाकी के 8 महीने को उसको कुछ पता ही नहीं है भगवान क्या है, किधर है, कुछ नहीं। पर ये 4-5 महीने में उतना उसको रिलीजियस आएगा ना, 4 बजे उठेगा, मंदिर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वो मेडिटेशन, साधना ये सब करेगा, और ऐसा उसको लगता है कि भगवान मेरे साथ बात कर रहे हैं। फिर मेरे डेथ रिलेटिव आ रहे हैं, वो मुझे ये बता रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। वो क्या बोलते हैं उसको, नरक में हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। उसका ऐसा डिल्यूजन है, ये सब ने मेरे साथ गलत किया था, इसीलिए वो लोग नरक में गए, अभी वो लोग मुझे हेल्प के लिए बुला रहे। फिर ऐसा ड्रीम में भी आता है और डेल्यूजन में भी दिखता है। एंगर, वायलेंस, प्रोफाउंड। फिर ड्रीम ऑफ द स्नेक सिंस चाइल्डहुड। एंड व्हेन यू आस्क दिस पेशेंट इन मेडिकल स्टेज, हु आर यू? आई एम अ स्नेक, और मैं पाताल लोक से आया हूँ, और ये पाताल, मुझे तो ये सब कर्म वगैरह सब कंप्लीट करना है, इसलिए भगवान ने मुझे भेजा, वरना मुझे तो इंसान ही नहीं बनना था, ये तो भगवान ने भेज दिया। क्लैरवॉयंस भी उसका प्रोमाक था, उसके फैमिली मेंबर ने ही बताया मुझे कि अगर घर में कुछ भी बुरा होने वाला है, किसी की डेथ होने वाली है, उसके 10-15 दिन पहले वो बोलता है कि कुछ बुरा होगा, ड्रीम में भी दिखेगा और वो बोलेगा, और एक्चुअल में होता भी है। वो स्वीट डिजायर है, पास्ट हिस्ट्री में टीनिया था, पाइल्स था, रूब्रिक लिए, प्रोटेलस कास्कावेला मैंने प्रिस्क्राइब किया, फरवरी में मैंने प्रिस्क्राइब किया था, आज दिसंबर चल रहा है, अभी तक रिलीजियस मीनिया वाला स्टेज नहीं आया है। उसका जो पाइल्स सप्रेस किया था आयुर्वेदिक और अदर मेडिसिन से, वो रिअकर हुआ, पर कोई मेडिकेशन नहीं दिया, अपने आप चला गया। टीनिया भी रिअपियर हुआ, वो भी अपने आप चला गया। वर्टाइगो का कंप्लेन है, वो भी अभी थोड़ा बहुत है, पर वो भी चला जाएगा। रूब्रिक्स जो हमें कास्कावेला में देखने को मिलेंगे, माइंड डेल्यूजन, दैट पर्सन सीज रिलेटिव्स इन अ रूम, ये नेट्रोम्यूर में भी दिखेगा, 2 मेडिसिन दी इसमें कंप्लीट रेपर्टरी में। माइंड डेल्यूजन, फुटस्टेप्स हियर, देखा कि बाजू के रूम में भी उसको मिलेगा। माइंड डेल्यूजन, आइज आर फॉलिंग, और पैसिफ्लोरा में भी ऐसा दिया है। माइंड डेल्यूजन, गॉड, डेटी सीज, सब दिखते हैं, देवी दिखते हैं, देवता दिखता है, सब मुझे सपोर्ट करने आ रहे हैं। माइंड डेल्यूजन, ग्रॉन्स हियर, वो सबके उसको कोई चिल्ला रहा है, उसको ऐसा लगेगा।
माइंड डेल्यूजन पीपल समवन टॉक विद एक्सेंट, जो यहाँ पे है ही नहीं वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. माइंड डेल्यूजन स्केलेटन सीज, माइंड डेल्यूजन वॉइसेस हियर एंड अटैक्स देम, माइंड डेल्यूजन वॉइसेस हियर फॉलो दैट मस्ट, मुझे कोई आवाज सुन रहा है और मुझे वो आवाज बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा. माइंड ड्रीम इल्यूमिनेशन, माइंड लाफिंग अल्टरनेटिंग विद द ग्रॉनिंग, माइंड लाफिंग अल्टरनेटिंग विद हेम्ब्रेज यूट्राइन, माइंड मैग्नेटिक स्टेट. एक और है जो जितेश सर ने केस में बताया था, उनके पास एक लेडी आई थी तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पाँव में मैग्नेट और जमीन मुझे अपने अंदर खींच रही है. माइंड मैग्नेटिक स्टेट पावर इंक्रीज इन फील्स पर्सन, उसका पावर मैग्नेटिक बाहर बहुत बढ़ गया, लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सब मेरे पास आ रहे हैं. माइंड स्क्रैचेस विद द हैंड्स, माइंड स्क्रैचेस विद द हैंड्स डोर्स, माइंड स्क्रैचेस विद हैंड्स वॉइसेस इमेजिनरी. स्क्रैच करेगा, हाथ से स्क्रैच करेगा, डोर को स्क्रैच करेगा. फिर जो इसको इमेजिनरी दिखते हैं ना सारे, जो उसको भी स्क्रैच करेगा. माइंड नो डिजायर, माइंड स्ट्राइकिंग बायस्टैंडर साइड, कोई भी बाजू में खड़े होगा उसको भी मार देगा वो. एंड माइंड थ्रो हरसेल्फ अगेंस्ट द डोर. नाउ नाजा, इंडियन कोबरा, डिग्निफाइड, ऑनरेबल, वेरी प्रॉपर स्नेक, नोबल स्नेक. उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, वो सब इतना होता है. नाउ लेफ्ट साइडेड स्नेक, एंशियस, बहुत एंजाइटी होती है, एंजाइटी कंसर्न्स होता है, मैंने ये तो ठीक से किया ना, मैंने ये तो गलत नहीं किया ना, मैंने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, किसी के साथ मेरी वजह से तो कुछ गलत नहीं होगा ना. वो रिप्रोचेस अपने आप को इतना करता है, रिप्रोचेस हिमसेल्फ में ये है. फिर वो ऑटो इम्यूनिटी में जाता है. डिल्यूजन निग्लेक्टेड ड्यूटी, डिल्यूशन डबल ड्यूटी और विल, उसको ऐसा लगता है कि मेरी दो ऐसा है विल, में ये करूँ वो करूँ, ये करूँ वो करूँ. फील्स अनसक्सेसफुल एंड फेलियर, और वो सेल्फ रिप्रोचिंग में बहुत है, सेल्फ डिवोल्यूशन में ही जाता है. रिप्रोचेस सेल्फ, ऑटो इम्यून स्नेक, ब्रूडिंग कॉन्स्टेंटली, इमेजिनरी कंप्लेंट्स पे वो ब्रूड करना स्टार्ट करता है. ये कुछ है ही नहीं, पता है कि कुछ नहीं है, फिर भी वो कॉन्स्टेंटली थॉट चालू रहता है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ. नर्वस सिस्टम, सेरेबेलम, बैलेंस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे सारे पे उसका एक्शन है. एक्सटर्नल थ्रोट कॉन्स्ट्रिक्शन, स्टर्नोक्लेडोमास्टर मसल स्पाज्मोडिक एंड कॉन्स्ट्रिक्शन. इसको ऐसा दोनों स्टर्नोक्लेडोमास्टर पे कॉन्स्ट्रिक्शन वाली फीलिंग आएगी. जब ये वाला कॉन्स्ट्रिक्शन इलाप्स को स्टर्नो रीजन पे आएगा. इसोफेगस स्पाज्मोडिक कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ, डेवलप्स पैथोलॉजीज अराउंड द हेड, प्रोन टू हेड इंजरी, ट्यूमर होगा, ग्लायोमा होगा, कुछ भी होगा, उसको लगा रहेगा कि मेरे हेड पे कोई इंजरी आएगा, इसलिए एज अ डिफेंस वो ट्यूमर ऐसा सब डेवलप करेगा. ब्रूड्स कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स विद पॉसिबल मिसफॉर्चून, सारी पॉसिबिलिटी सोच लेगा, हाँ इसके ऐसा हुआ है, फिर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ब्रूडिंग उसका कंटिन्यूस ही रहेगा. कार्डियक वाल्वुलर डिसऑर्डर, कार्डियक वाल्व पे उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है. माइट्रल वाल्व पे विद पॉसिबिलिटी ऑफ द सिम्टम, बहुत ही कम सिम्टम्स हो गए और माइट्रल वाल्व पे ही काम करेगा जब पेशेंट बहुत ही कम सिम्टम्स के साथ आता है तब. palpitation prevents this speech, so stage fear, public speaking इतना होगा, नर्वस क्रॉनिक palpitation उसको कंटिन्यू ही रहेगा और ये उसकी स्पीच भी प्रिवेंट करता है. impossible to lie on the left side or the lie down, and ailments extending from left to right side, pain from left ovary to heart जाएगा इसका. cardiac asthma और cough, pain in heart extending to nape of neck and left scapula, अंजना के जैसे इसका पेन जाएगा. rubrics, mind delusions, imagination, images phantom and sees wrongdoing of the possible. वो उसको images देखेंगे, phantoms देखेगा, जो भी रॉन्ग डूइंग, जो भी पॉसिबिलिटी हो सब गलत होता दिखेगा उसको. माइंड मेनिया, सुसाइडल, माइंड डिल्यूजन, निग्लेक्टेड ड्यूटीज, माइंड डिल्यूजन, इमेजिनेशन, मिसफॉर्चून, इनकॉन्सोलेबल ओवर, माइंड इंसैनिटी, सुसाइडल एक्स विथ, उसको कुल्हाड़ी लेके ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड कर दूं. माइंड सिक्रेटिव, सेल्फ डिप्रेशिएशन, माइंड इंसैनिटी, मैडनेस, स्प्लिट हिज हेड इनटू टू व्हील, वो हमने देखा कि उसका डबल व्हील है, पता नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँ वो करूँ. माइंड सैडनेस, सुपरफ्लुअस फीलिंग,
माइंड सैडनेस रॉन्ग वे एज ही इफ हैविंग डन एवरीथिंग, उसने जो भी किया वो गलत तरीके से ही किया है। इलैप्स कोरल स्नेक इज लवेबल और फॉस्फोरस स्नेक। सर ने ऐसा बोला है जीतू सर ने कि अगर फॉस्फोरस जैसा आपको दिखेगा और आपको कैंसर का भी दिखना मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द इलैप्स। फॉस्फोरस जैसा लवेबल होगा, चॉकलेट डिजायर, स्वीट डिजायर, ये सब होगा उसमें। डिजायर टू बी रिमेन कैविटी, ड्रिप्स ऑफ एब्सेपिड, उसको सब खड्डे ये सब भी दिखेगा। एंटिसिपेटरी एंड टीमिड, वो बहुत ही टीमिड होगा, उसका एंटिसिपेशन भी होता है। कलर्स फैसिनेशन मास्टर, उसको बहुत सारे कलर्स देखो, बहुत ही कलरफुल स्नेक है, उसको फैसिनेशन मास्टर होता है। लव्स नेचर, रेन, आइस क्यूब्स एंड बटरमिल्क। ब्लैक डिस्चार्जेस, सारे डिस्चार्जेस ब्लैक, ऑफेंसिव। हेमरेजेस फ्रॉम द लंग इज एज ब्लैक इंक। थ्रॉट फूड सॉलिड्स टर्न लाइक अ corkscrew on swallowing, corkscrew spine and esophagus due to excess of elastin। हमने देखा कि उसको fear of being poison है, इसलिए वो प्रिवेंट करेगा कि उसका डायरेक्ट नीचे ना जाए, इसके लिए वो इलास्टिन एक्सेस होगा, तो जहाँ पे होगा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, नीचे वापस थोड़ा खुलेगा, इसलिए सर्पेंटाइन पैटर्न आएगा जैसा हमने आगे देखा वही। ये उसका अबोव से व्यू है और ये बैरियम मिल वाला व्यू है। Desire for solitude, aversion to company, avoids the sight of the people, wants to get into the country away from the people। मिज़ेंथ्रोपी इसको भी है, मुझे मैनकाइंड नहीं चाहिए, मुझे अकेला ही रहना है। Dread of being alone out of the fear, fear की वजह से उसको ऐसे लगेगा कि ठीक है इतना बस कुछ है, fear है, फिर भी अकेले रहने में डर भी लगता है। Fear of rain, robbers, snakes and apoplexy, uterine complaints, menstrual complaints, सारे डिस्चार्जेस ब्लैक है, मेंस्ट्रुएशन भी वेरी ब्लैक होगा। स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा भी वो अगर वॉक करेगा ना तो उसको लगता है बहुत सारा, उसको मेंसेस आ जाता है। मार्क्ड कार्विंग फॉर द सैलड्स एंड ऑरेंजेस। राइट साइड फील पैरासाइट एंड इनसेंसिबल, एमिलियोरेशन बाय लाइंग ऑन द एब्डोमेन। इलप्स का ये भी मार्क है कि उसको सारी कंप्लेंट्स में एब्डोमेन पे लाई करने से एमिलियोरेट होता है। कोल्ड ड्रिंक्स फील लाइक आइस इन स्टमक। माइंड ड्रीम्स डेड बॉडीज डिगिंग नाइफ इनटू वुंड्स ऑफ, डेड बॉडी के ड्रीम आ रहे हैं, वो जो भी वुंड है वो नाइफ से डिग कर रहा है ना, ऐसे उसको ड्रीम आता है। पुटिंग डिसीज बॉडी इनटू दिस रॉड, वो सारी बॉडी या फिर अभी वापस रख रहा है। वाइपेरा बराइटा स्नेक, वेरी स्लो, स्लगिश, इंटेलेक्चुअल वेरी लो होगा, अगर उसको कुछ भी पूछे मैं ऐसे स्टार करता रहेगा, क्या आपने मुझसे कुछ पूछा, ऐसे। नॉन रिएक्टिंग, स्लो आंसर्स। ब्लड वेसल्स कंप्लेन ऑफ, हमने देखा कि ये वास्कुलर टॉक्सिक है, इसके इसलिए उसका इफेक्ट आएगा एक तो वास्कुलर ब्लड वेसल्स पे और लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम कॉजिंग वास्कुलाइटिस, लिम्फेंजियोमा एंड लिम्फेंजाइटिस। लिम्फेटिक सिस्टम में उसका सारे ट्यूमर्स और वगैरह प्रोड्यूस होगा। वेरिकोस अल्सर, वेरिकोस वेन, वेरिकोस परफोरेशन with blackish discoloration of the affected part with a characteristic sweat over entire body except the affected part। वेरिकोसिटीज में बहुत ही मार्क होगा, लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका पूरे बॉडी पे स्वेट होगा, लेकिन जो पार्ट अफेक्टेड है ना वहाँ पे बिल्कुल भी उसको पसीना नहीं होगा। वेरिकोस वेन aggravated by hanging limbs and ameliorated into resting in the limb elevation। थोड़ा भी लीव उसका ऐसा रहेगा तो उसको एग्रावेशन होगा, लेकिन किसी पे रेस्ट कर दिया, किसी भी सरफेस पे रख दिया तो फिर उसका एमिलियोरेशन होगा। वास्कुलर टॉक्सिक एंड लिम्फोटॉक्सिक, ब्लड थ्रोम्बाई, ब्लड थिक, हेमरेजिक टेंडेंसी एज वेल एज थ्रोम्बाई फॉर्मेशन। अगर उसका हमने देखा कि डायरेक्ट ब्लड पे अफेक्ट करेगा, ब्लड के कंपोनेंट में चेंजेस लाएगा, फाइब्रिन एक्सेस में जाएगा तो फिर वो थ्रोम्बस फॉर्म करेगा, और फाइब्रिन लो में जाएगा तो फिर हेमरेजिक टेंडेंसी होगा, सारे भी सरफेस से ब्लीडिंग आएगा। डीआईसी कोएगुलोपैथी, कोएगुलेशन उसी में आ गया। माइंड डेल्यूजन, इमेजिनेशन, परस्यूट ऑफ बीइंग बाय सैटर्न, चुड़ैल ने मुझे पीछा करा, किसी बुआ ने ऐसा किया है, ये सब हमारे इंडिया में बहुत ही प्रमुख है। कोई चुड़ैल मेरे पीछे पड़ी है, कोई बुआ पड़ा है, मेरी बॉडी में अंडर कंट्रोल ऑफ द सुपर ह्यूमन पजेस कर लिया है मुझे, और डू सेक्सुअल एक्ट विद देम, और ये सब मेरे साथ सेक्सुअल एक्ट कर रहे हैं। मॉर्फिनिज्म, ड्रग एडिक्शन, स्पेशल इंजेक्शन फ्रॉम, ड्रग एडिक्शन हो गया, मॉर्फिन का ज्यादा उसने ले लिया, देन वी कैन थिंक ऑफ वाइपेरेट। कार्डियक ड्रॉपसी, प्रीमेच्योर सेनिलिटी लाइक स्ट्रेमोनियम,
ओल्ड एज प्रीमेच्योर, उसके सारे जो ओल्ड एज के चेंजेस है ना बहुत ही पहले आ जाते हैं। और 20 की साल मतलब 25-30 की उम्र में वो 50-60 का दिखने लगता है। वोंट ब्लीडिंग फ्रीली, ब्लैक ब्लड, हेमरेजिक टेंडेंसी देखा ब्लैक ब्लड ही जाएगा। डिलीरियम सेप्सिस फ्रॉम टॉक्सिक गटर, स्पीच डिफिकल्ट हो जाएगा। वाइल्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट, टेम्पटेशन ऑफ द एडल्ट्री, एवरीथिंग दैट इज प्रोहिबिटेड इन दिस विल बिकम टेम्पटेशन। उसको जो भी मना करेगा ना वो उसको एज अ टेम्पटेशन आएगा। सेक्सुअल उसको नहीं मिल रहा है तो फिर एज अ टेम्पटेशन उसको बहुत ही ज्यादा हाई मार्क में आएगा। फुल फीलिंग, ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन, prostration of the eyes and heat in eyes and profuse lacrimation and swelling of the face. Like profuse lacrimation अगर पूरा फेस उसको स्वेलिंग के साथ दिखेगा। सेंक्रिस, सेंक्रिस को हम बोल सकते हैं सेक्सुअल स्नेक, वेरी मच अट्रैक्टिव स्नेक बट ऑल्सो कंफ्यूज स्नेक। डोमेस्टिक ड्यूटी एवर्सन, उसको घर का कुछ काम नहीं करना है, जो उसको रोज बरोज का काम करना है वो उससे नहीं होगा। डोमेस्टिक अगर आप बोले झाड़ू पोछा बर्तन मैं नहीं कर सकती, ये सब खाना पकाना मैं नहीं कर सकती, अगर उसमें कुछ नया करना है तो मैं करूंगी, वरना डोमेस्टिक रोज मरोज का काम तो मुझसे होता ही नहीं है। Exposes oneself, wears the indecent clothes as a fashion, fascinating, attractive and modern. वो बहुत फैशन के नाम इतने मॉडर्न क्लोथ्स पहनेगा, ऑफ शोल्डर पहनेगा, बैकलेस पहनेगा, उसको बोले ये तो फैशन है, उसको अपने आप को एक्सपोज करने में बहुत मजा आता है। फीमेल में भी और मेल में भी देखने को मिलेगा, लो वेस्ट जीन्स ये वो सब। ड्रेस इज कट ऑफ फ्रॉम द शोल्डर, वो ऑफ शोल्डर हो गया या फिर शोल्डर के कट है। शोल्डर रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ही नहीं। कॉपर कलर्ड हेयर नेचुरली और हाईलाइटेड, उसको नेचुरली भी कॉपर कलर के हेयर हो सकते हैं, अदरवाइज उसको हाईलाइट करवाया होता है उसमें। सेक्सुअलिटी इज वेरी हाई इन सेंक्रिस पेशेंट, ड्रीम्स ऑफ सेक्स, बीइंग रेप्ड, एनिमल मैटिंग, बिटन बाय स्नेक एंड टेरेपिंग, उसको ड्रीम में भी स्नेक्स आएगा, उसका रेप हो रहा है ये सब आएगा। वो कछुए दिखेंगे, बड़े बड़े कछुए आते हैं ड्रीम में। एनिमल मैटिंग, एनिमल इंटरकोर्स को भी इनको ड्रीम आता है। ड्रीम्स ऑफ टर्टल, टेलीविजन प्लेसेस टू एट द सेम टाइम ऑफ बीइंग इन, ऐसा लगेगा मैं इस टाइम इधर भी हूँ और वहां पे दूसरी सिटी में भी हूँ, ये अभी कैसे होगा, मैं इसका डेल्यूजन तो देखो, यहाँ पे भी हूँ वहां पे भी हूँ। फियर ऑफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स एंड पिंस लाइक सिलिशिया, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर एंड लिबर्टिनिज्म, उसको लिबर्टी ही चाहिए, मुझे कोई डोमेस्टिक ड्यूटी नहीं करनी, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे मेरी फ्रीडम भी चाहिए, मुझे जो करने में वही करूंगी। Thinks her husband is going to put her into the mental asylum. Death, presentiment of sudden death, especially at night. तो लगेगा मेरा सडन मैं आज रात को मरी जाऊंगी। Great sphere of action in many conditions where excessive swelling is leading feature. Because सेंक्रिस बाइट होता है ना, तो वहाँ पे excessive swelling at the site of snake bite पे डेवलप होता है, इसलिए इसके फीचर में भी कोई भी कंडीशन हो जहाँ पे excessive swelling है तो सेंक्रिस का हम सोच सकते हैं। Swelling, edema over the eyebrows, over the eyebrows सेंक्रिस होगा, below the eyebrows edema of the lower eyelids, एपिस, over the eyebrows में सेंक्रिस से काली काप भी आता है और पूरे आईलिड के आसपास फॉस्फोरस आएगा। Nausea ameliorated by eating ice cubes, उसमें सिंगल रेमेडी है सेंक्रिस और आइसक्रीम्स। Constriction at the umbilical region, genetic confusion, distinctive symptoms, जेनेटिक लेवल पे भी उसका कंफ्यूजन देखने को मिलता है। Pulsating pain in different parts of the body, synchronized with the heartbeat, जहाँ पे भी उसको पेन हो रहा है पल्सेटिंग टाइप का पेन होगा और उसको ऐसा लग रहा है कि ये पेन मेरी हार्टबीट के साथ ऐसे सिंक्रोनाइज होके चलता है ना, ऐसा लगेगा मुझे। राइट साइडेड लाइकेसिस, ड्रीमी, एब्सेंट माइंडेड, मार्क अल्ट्रेशन ऑफ द मूड, एब्सेंट माइंडेड है ड्रीमी, और उसको ऐसा लगेगा वो गाड़ी लेके के निकलेगा, पहुंच भी जाएगा दूसरी जगह, फिर पुतक मैं कहाँ पहुंच गया, मुझे कहाँ आना था। This much confusion of the mind is present in sanctus. Allergy is aggravated by spring. जनरली सारे ओफिडिया की सारी कंप्लेंट्स हमने देखा कि स्प्रिंग में एग्रावेट ही होती है। डिफिकल्ट एंटी स्वेलोइंग विद इजी स्वेलिंग ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड, सारी ओफिडिया से ये थोड़ा इसका अलग है, इसको सॉलिड स्वेलो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। गास्पिंग, टॉकिंग वाई, तो बात करते हैं तभी वो गास्प करता है, रेस्पिरेशन गास्पिंग आता है उसका। इन केस ऑफ द जेनेटिक रिलेशन, कट ऑफ द जेनेटिक लेवल, इसको
रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना नहीं लेना कि जेनेटिक लेवल पे भी वहाँ पे जीन डिलीशन मिलेगा हमें. फॉर्सिकन फीलिंग एज रिएक्शन विल डेवलप जेलसी. तुमने देखा पहले फॉर्सिकन फीलिंग आएगा, फिर जेलसी आएगा, फिर वो एक्सट्रोवर्ट बनेगा, कम्युनिकेटिव बनेगा, सब बनेगा. एक्साइटमेंट इन द मॉर्निंग एंड सैडनेस इन द इवनिंग. ट्राइकेसिस में इसका अपोजिट देखने को मिलेगा. वो मॉर्निंग में बहुत सैड डल होगा और रात को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा. रूब्रिक्स माइंड क्लिंगिंग फादर टू. इसमें सिंगल रूब्रिक सिंगल रेमेडी है. माइंड डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ लाइंग वाइल. माइंड डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ सडन डेथ ऑफ अ. माइंड ड्रीम्स एनिमल्स ऑफ कॉपुलेटिंग. माइंड ड्रीम्स एनिमल्स ऑफ परस्यूड बाय मेल टू इंजर हर. Mind dreams rape seeing. Mind dreams terrapin, water turtle. Throat fullness, swallowing ameliorates. And generalities and last sensation busting too. वो सारी जगह पे उसको busting, swallowing ये सब भी दिखेगा. Thank you. It was a wonderful, in short, a glimpse of Ophidia, and thank you, Dr. Anjali. I give him a token of gratitude for this wonderful lecture. Please, Anjali, token of gratitude to him. Today we have Dr. Jitesh sir with us. So, my mentor, and the things which I learned from sir, if sir is present here, I request sir to give some clinical importance of your practice regarding the Ophidia group. Please sir. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ. આમ તો અંજલીએ બહુ સરસ રિપ્રેઝન્ટ અને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરાવ્યું આપણને ઓફિડિયા. મને નથી લાગતું કે કંઈક બાકી હોય. હું ખાલી અંજલીએ જે આપણને એક્સપ્લોર કર્યું છે એને ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં હું થોડા કેસીસ તમને શેર કરું. તારા પહેલાંમાં શેર નહીં હવે આપણે ક્લિનિકમાં ઓફિડિયા આવે એટલે આપણે કઈ રીતે પરસીવ કરીએ, બરાબર? જો આપણને આટલું આ જેણે પ્રેઝન્ટેશન આપેલું છે બધા ઓફિડિયામાંથી, આની બહારનું કંઈ છે જ નહીં. સોરિકથી લઈને સિફિલિટીથી લઈને જીનેટિક સુધી આ બધું જ આવી ગયું છે. પણ આને પ્રેક્ટિસમાં કઈ રીતે જોવાનું છે એ હું તમને ખાલી એક ઇન્સાઇટ આપું. મેં જે રીતે જોયું છે, ધીસ ઇઝ માય એક્સપિરિયન્સ ઓફ ઓફિડિયા ઇન માય પ્રેક્ટિસ. વેરી સિમ્પલી. પણ આ વસ્તુને પ્રેક્ટિસમાં કઈ રીતે, સપોઝ કે એક કેસ છે, આપણે એક ડૉક્ટર છે, એને 8મો મહિનો ચાલતો હતો અને એવું આવ્યું કે ફિટો મધર સર્ક્યુલેશનમાં એ ફિટો મધર સર્ક્યુલેશનમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો એટલે કે ક્લોટ જમા થયો. એ પહેલાં તો હાઉ આઈ લર્ન ઓફિડિયા. I learn Ophidia from the Dr. Vijay sir. First and foremost thing, if I had not met with Vijay, I will not understand the depth of Ophidia. That is the first and foremost thing. Then I started to, and I was interested to watch the only Discovery, but I like. I always see the Discoveries. And in Discovery, when I understand Ophidia, then I start to explore the different kind of the snakes, how they behave, how they adapt, how they lives, and what is the toxicology of the Ophidia. And then I start to correlate in my practice. I understand there are the toxic and non-toxic Ophidia, and this is the case. Okay. એવી રીતે પછી એની ટોક્સિકોલોજીને આપણે ક્લિનિકલમાં સિમિલરની તરીકે જોઈએ અને એપ્લાય કરીએ તો the deadliest poison are the marvelous in the miraculous result.
તો એક ઓકે તો એને ફિટોમધર સર્ક્યુલેશનમાં પ્લોટ આવ્યો એટલે 8મો મહિનો ચાલતો હતો એટલે કીધું હવે છે ને આને કહેતો નહીં તો કે ભાઈ છે ને આને સર્ક્યુલેશન નથી મળતું કીધું ઓકે ચાલ તો સોનોગ્રાફી કરાવીશ કીધું સોનોગ્રાફીમાં આપણે શું સમજ પડે કીધું લાવો સોનોગ્રાફી આમ કર્યું સોનોગ્રાફી જોઈ ઓકે આમાં તો આપણે ભણેલા નથી આ બચ્ચું છે ઓકે નાઉ એઝ અ હોમિયોપેથી વી વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હોમિયોપેથિકલી what is there okay then I start to see I zoom કરતો આ બચ્ચું છે ઓકે now when we look we observe what is something different in the observation એમાં zoom ન થયું પેલા નહીં થાય ને એમાં થાય પણ એટલું નહીં બતાવે આટલું ઝૂમ થાય એને સેવ કરીને જોઈ એ કરીએ ઓકે very nice. પેટર્ન Then I see બચ્ચું ઓકે કઈ વાંધો નહીં not responding slowly Here you want to try to block the circulation, phytomother circulation. There means circulatory system is affecting where you does not want to nurture your child. You want to block the nurturing of the child. That means you want to cut off the your progeny. That then this is a cobra. I see the pattern of the cobra. Did you get the dreams of snake? Yes, the cobra, Naza. Take the Naza 201 dose and the second days, marvelously within 24 hours, it was the disappear of the plot and yesterday her birthday was there. First one. This is the hair represent. Pattern represent the doctrine of signature. What we see the pulsarilla is like this. This is the Naza. Another case. એક બચ્ચી જે આમાં આપણને અંજલીએ વાઇપેરામાં કીધું lymphatic lymphatic lymphangioma and diagnosis was the cystic lymphangioma. આવે છે હા ને હા અહીંયા ગાંઠ હતી ચરબીની ગાંઠ નથી. It is a lymphatic system which has been start to grow and it represents the lymphangioma, tumor lymphangioma. હવે એની બાયોપ્સી કરાવે તો શું આવે? lymphatic tissue જ આવે. કોઈ દિવસ બાયોપ્સી નહીં કરાવવાની. Biopsy is like just potatoes, whole potatoes, vegetable prepared and then you take the one part of that potatoes sabji and send to the America and they say it's a potatoes vegetable. What nonsense. Biopsy is just like this. When you see it is prepared from potato, definitely biopsy will suggest that is potato. So squamous cell carcinoma, cell, so this is lymphangioma.
lymphangioma. Now, the whole case lymphangioma, it is a tumor lymphatic glands, lymphangioma. Vipera is a strongly and special affinity for the lymphatic system, lymphangioma. And after prescribing lymphangioma, whole case was there, cystic lymphangioma. Within 2 months, it disappeared. It's a case previously before 4 years when I understand the vipera. Just follow. I usually don't follow. Everything is vanished. આ બચ્ચીને ઓકે હા રાજકોટની છે પછી વાઇપેરા વાઇપેરા વખતે હા પેલો આ લેવો છે This is a wonderful case. જે આગળ છે એના પછી ના Milroy syndrome. Milroy syndrome. Milroy syndrome is nothing but a syndrome is a combination of the things where it happened the two different system and represent into the one particular thing because of the genetic alteration or malformation or deformity. In this Milroy syndrome there was the verruca, plantar verruca, and એને કટ કરીએ પાછા આવે કટ કરે પાછા આવે અને બીજું એનો પગ હાથી પગા જેવો થઈ જાય because of the lymphangitis, lymphatic involvement. So this is the syndrome. In Surat, skin specialist was trying to research in this case but failed. After cutting it disappeared, but lymphatic system was there. And one of my friends, skin specialist, says, you have some scope in the homeopathy, you can treat this. This is wonderful, this is simple. Okay. Give the vipera 200 and next month clear. This is the girl. Oh, how it happens? Okay. Because it is our affinity, what Ophelia can do. And then, still right now, since last 2 years, she is exclusively on Vipera. She had consumed the Vipera 300 doses till 2 years, and right now she is on Vipera 200 water potency. And all the lymphatic system has been clear up, only this much part below the ankle is there. Another case, the wall lymphatic, this diameter was like that. And because it was the genetic mutation in the mother's womb, lymphatic system was developed, but then after there was some insecurity and some threat, so body has tried to protect in defense of the verruca and that things. And Anjali says one case, Shankris. When excessive swelling is the leading features of Shankris, open the boric last line. જોયું ને બોરિકમાં last line લખેલી છે. When excessive swelling is the leading features of the Shankris. Shankris, puffy bag-like swelling under the eyelids, Apis mellifica. Puffy bag-like swelling the above eyelids, Calicarp and Shankris. Puffy bag-like swelling around the eyelids, Phosphorus. But when excessive swelling is there, Shankris. Shankris 10 was given, and after 24 hours, angioneurotic edema, allergy. This is the blood. Before and after. Shankris 10 and 50 m was given. Another, Anjali says the Shankris is a very sexual snap, and the turtle and terrapin. Turtle and terrapin. You can see next slide, Masha. Right side. This is a turtle. Why this particular nervous on the right side of the boys is there? Why? There is why there is. This is turtle. There was the dreams of the snake which was pursuing, and what was the understanding dreams of the snake? There were the three snakes, like one snake, second snake, and third snake is there, and there was a gutter,
and I can see only the half snake, not full snake, and there was the gutter, where in gutter there are the two type of the turtles is there. One is the land turtle and one is the water turtle. Now in gutter they are waiting, but what was the interesting part, there was the three snake and I can see only the half snake and there is gutter. But where was the half part? Half is syphilis. Half is syphilis. And where is the half part? The half part I didn't see because of they were conjoined. Conjoined. So this was representing copulating. Copulating, position, process of a sex. And that's what dreams, amorous, copulating, animal copulating. Shankris is the only remedy. This is a unique features. Shankris was given, this will not disappear. Try to understand. This will not disappear, it is a nervous, it represents where we have to reach. Try to understand. Body says where we want to reach in form of the medicine. This is child, curly hairs, all the things, coat around neck, vomiting, about to be poisoned, એ બધું પછી છે. પણ what the body represent, how we understand the body to reach the simillimum like Shankris, Vipera and whatever. થઈ ગયા? Yes. Okay. બરાબર, બાકી તો અંજલીએ બધું બહુ બધું કીધું છે. One thing I share, Crotalus viridis. Crotalus viridis is a wonderful remedy, particularly, let me see the exact things. If you want to write down, the snake venom Crotalus viridis can arrest the multiplication of the human deficiency virus, HIV. How? Crotalus has the inhibit reverse transcription enzyme which is utilized by virus like HIV and hepatitis B. Hepatitis B, HIV, leukemia, Crotalus viridis 50 mg, one single pill will convert viral RNA into viral DNA so that multiplying in a billions or trillions of the copies which represent the viral load. And after prescribing Crotalus viridis, CD4, CD5 will increase, viral load of the HIV will decrease and this copy will enhance. That shows that it is an immunomodulator, in particular hepatitis B, HIV and leukemia. This is my clinical experience of the three disease. આપણે પ્લેગ આવ્યો ત્યારે Crotalus viridis was the genius epidemicus, because there is one thing, zymosis. Understand the zymosis. When Crotalus viridis bite, it affect the blood, coagulation, DIC. આ બધા disease વાંચો. એમાં જે બધી પ્રોસેસ થાય છે, coagulation, bleeding, hemorrhage, that HIV, slow progressing zymotic disease, Crotalus viridis. Okay, thank you. So it was a wonderful session, and in nutshell, my mentor has given a clinical utility of Ophidia groups. So thank you, Anjali, and thank you all team Shah, and I am bound to my mentor Dr. Jitesh sir, who have given me the everything. So that everything is covered. So today I am not taking any lecture on that. Even my mentor has taken every clinical aspect. Thank you so much, and wish you all the best for a coming soon lecture on drug. Next Sunday we will have drug remedies. So wish you all the best. Thank you so much.